हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। 9 अगस्त। श्री कृष्ण उन भक्तों की विशेष प्रशंसा करते हैं जो प्रचार कार्य के लिए खतरे उठाते हैं। वे तुम्हारा विशेष ध्यान रखेंगे और सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि तुम इस कार्य में गंभीरता से सेवा करने का प्रयास कर रहे हो। अमोघ को पत्र 9 अगस्त 1972। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। So, Rajastama Bhava, there are 3 stages. You know, Satta, Rajas, Tama. The material world is conducted by 3 modes. The modes of goodness, modes of passion, and modes of ignorance. Therefore, we find varieties of men. So, one has to come to the platform of the modes of goodness. Just like illiterate, uncultured animal like man is trained up to come to become civilized. By training it is possible. Just like by training even cats and dogs and tigers, they are also become obedient. That is our practical experience. The tiger in the circus, they play obediently to the orders of the master. So, by training, it can be possible. But there are 2 kinds of training process. One process is scheduled. Tapasa brahmacharjena samena damena va. Undergoing tapasya, austerity. Brahmacharjena means controlling sex indulgence or sex impulse. Brahmacharya means practically no sex life. Tapasa brahmacharjena samena damena, by controlling the senses, by controlling the mind. Tyagena, by giving up in charity. So there are gradual process. But there is another process. Another process means this Krishna consciousness. Either you practice in this way, just like if you want to go up, there are 2 vehicles or process. You go step by step, one step after another. Suppose you have to go 100 steps, so you have to go step by step, tapasa brahmacharjena samena damena, practicing. The another process is, why I am making this side? Stop it. Another process is the lift. You go by step or take the process of lift. Within a second you come up. So the bhakti yoga process is like that. Bhakti yoga process means if you take to this process, then immediately, very quickly, within a second, you come to the top floor. Otherwise, you have to go by step, 1 step, 2 step. Although both the process leading to the target, to the topmost floor, the one is very slow and the other is very
quick, immediate. Just like another example, if there is fog, you have got experience in your country. Sometimes there is fog. You cannot see even a person 1 yard off from you. So there are so many processes to take precaution in the fog. But somehow or other, if the sun is little strong, immediately the fog is over. So similarly, to purify ourselves, this is the purification process: austerity, penance, controlling sex life, controlling the mind, controlling the senses, giving in charity whatever you possess, everything regulating. This is one process. And the other process is this bhakti. Sinnatang sakata krishna panna savana kirtana riddantastha avadrani vidunati. Simply by this process, savanam kirtanam, hearing about Krishna. This is we are discussing. Nasta prayesu avadri, simply by hearing. Avadresu, nasta prayesu, all the dirty things within heart, being almost clean, you come to the stage of goodness. There are 3 stages, 3 platforms: ignorance, passion and goodness. So simply by hearing about Krishna, you are promoted immediately to the platform of goodness. And as soon as you come to the platform of goodness, then tada, at that time, rajastamo bhava, because there are 3 platforms: ignorance, passion and goodness. So you have come to the point, to the platform of goodness, means that you have passed over the other lower stages. That if you have come to the college, that means you have passed your school stages. It is to be understood. Therefore we offer sacred thread. The idea is, one who has become Krishna conscious, he has already passed the stage of becoming a Brahmin. Brahmin means to come to the stage of goodness. That is Brahmin. Kshatriya means to remain on the stage of passion. Vaishya means to remain on the stage of mixture, passion and ignorance. And Shudra means to remain on the stage of ignorance. There are 4 divisions of the 3 modes. So, when we come to the stage of becoming a devotee, that means we have already passed all these lower stages. Tada rajastamo bhava. So, what are the symptoms of goodness? Kama lobhadayaschaji, lusty, lust and greediness. The whole world is moving by lust and greediness. This is the stage of ignorance and passion. Those who are embarrassed with the lower qualities of material nature, they are embarrassed with 2 things: lust, not satisfied, and greedy and low. Give me more, give me more, give me more. Give me anything. It's not satisfied. This is the whole world you see. Sometimes they think that if I get my income,
say $1,000, I will be satisfied. But as soon as he gets 1,000, he wants 100,000. If he gets one, just like in your everywhere, all over the world, the worker class, they are given increment, but again they go strike, more wages. But as soon as they get more money, not here in these Western countries, then they will utilize it for lust and greediness, that's all. They do not know how to utilize money. That a millionaire is so lusty, we have seen in Paris, they are going to some clubs. What is the business in that club? Old men, they are going, so lusty, that they enter the club by paying $50. And then there is young woman and wine, and that is their pleasure. Lust. Kama lobha. One thing, one side, they are not satisfied. Even they have got millions of dollars. Still I want. हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 70। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। समुद्र जो है शान है, सूखता नहीं, स्थिर रहता है। भगवान ने उसको एक बाउंड्री में बांध के रखा। अगर समुद्र की बाउंड्री नहीं होती तो इतने सारे लोग जो हैं समुद्र किनारे खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, किसी को डर नहीं लगता, इतना विशाल सागर। ये तो आज जो है पृथ्वी पे पाप बढ़ने की वजह से ये सुनामी और स्टॉर्म्स आ रहे हैं, नहीं तो नहीं होता। धर्म के कार्य में लगे रहेंगे तो ये नहीं होगा। एनीवेज, समुद्र में बारिश के सीजन में आपने देखा कितना बाढ़ आता है। भारत में जैसे देखेंगे अगस्त सितंबर बारिश पूरा फुल हो गई, हिमालय से आ रही नदियां भर भर के पानी आ रहा है, फिर बारिश हो रही है तो बहुत सारा पानी, उसको मेजर भी नहीं कर सकते। हजारों लाखों करोड़ों क्विंटल पानी जो है वो समुद्र में जा रहा है। और सिर्फ भारत में नहीं, आसपास जितने भी देश है मानसून तो सब जगह आता है, लेकिन समुद्र वैसा का वैसा ही रहता है, स्थिर। ऐसा नहीं देखेंगे बारिश में पानी बहुत आ गया और समुद्र में भी तो पानी गिरता है। पानी जाता कहाँ है? वो तो भूमि पे नहीं आ जाता समुद्र का पानी। और गर्मी के मौसम में जो सूर्य तपता है, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, सूर्य तप रहा है, समुद्र से पानी पी रहा है, नदियां सूख गई, नदियों में पानी नहीं आ रहा है, तो समुद्र कम नहीं हो जाता है, वो मेंटेन रहता है। तो एक भक्त का चेतना के बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कौन शांति को प्राप्त कर सकता है। देखिए, जब तक हमारा भौतिक शरीर है, भौतिक इंद्रियां हैं, तो डिमांड तो रहेगी। हमारी आंखें हैं, कान है, सब डिमांड करेंगे, मुझे देखना है, मुझे सुनना है, मुझे खाना है, मुझे बोलना है, ये सब डिमांड तो आते रहेंगे। इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं तो कंटिन्यूअस, निरंतर हमारे मन में उत्पन्न होती रहेंगी। लेकिन सब के होने के बाद भी जो व्यक्ति भक्ति में लगा है वो स्थिर होता है, समुद्र के जैसे, जिसमें हजारों करोड़ों इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन वह
अपनी स्थिरता को नहीं खोता, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। कितना सुंदर उदाहरण भगवान दे रहे हैं। आप देखिए, समुद्र जो है वो ऊपर सतह पे उसकी बहुत सारी लहरें होती हैं, अनंत लहरें आती रहती कंटिन्यूअस, लेकिन नीचे गहराई में समुद्र एकदम शांत है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगता है, कृष्ण भक्त बन जाता है, वो अंदर से एकदम शांत हो जाता है समुद्र जैसे। लेकिन बाहर से कार्य करते रहता है। ऐसा नहीं कि वो जाके हिमालय में या कहीं जंगल में या कहीं धाम पे जाके नदी किनारे बैठा और योग कर रहा है शांति से, नहीं। वो प्रचार में लगा है, दूसरों को कृष्ण भक्त बनाने में लगा है, तो मेहनत करता है कृष्ण के लिए। अर्जुन वही बोल रहे, अर्जुन को कृष्ण ने वही कहा कि अंदर तुम समुद्र के जैसे बनो, अंदर शांति, लेकिन ऊपर से तो युद्ध करना ही पड़ेगा। तो ये भगवान यहाँ पे कितना सुंदर उदाहरण से हमें समझा रहे हैं। अब जितना हमारा मन शांत है उतना ही हम भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति का ये मापदंड है, ये मेजरमेंट। जब विश्वामित्र आए थे दशरथ महाराज के पास राम और लक्ष्मण को लेने के लिए, तो दशरथ महाराज ने विश्वामित्र मुनि से पूछा, क्योंकि वो मुनि है तो उनका कार्य क्या है, अपने मन को वश में रखना। तो दशरथ महाराज उनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कैसे हैं, हाउ आर यू, ये नहीं पूछ रहे। वो पूछ रहे हैं कि आपका जो साधना है अपने मन को वश में करने का, वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई डिस्टरबेंस है क्या। जो जैसा है उससे वो प्रश्न पूछना चाहिए। स्पोर्ट्समैन है उसका अलग प्रश्न होता है, जो एक्टर है उसका अलग प्रश्न होता है, क्योंकि सबका प्रोफेशन अलग है। ऐसे ही वर्ण आश्रम है। अभी क्षत्रिय के लिए नहीं है कि अपने मन को वश में करना, वो तो युद्ध करे, धर्म से राज्य को संभाले, प्रजा का पालन पोषण करे, सबको भक्ति कराए। तो इससे पता पड़ता है कितना मन हमारा वश में है, कितनी इंद्रियां हमारे वश में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तथाकथित साधु, जो बाहर से तो दिखाते हैं कि हमारा मन और इंद्रियां वश में है, लेकिन अंदर इच्छाएं तो चल रही। आपने देखा होगा या सुना होगा, बहुत सारे मौन धारण कर लेते हैं, वहां लिखा रहता है हमने आज मौन व्रत रखा है। बात नहीं कर रहे, इसको मौन नहीं कहते, क्योंकि मन में तो बातें चल रही है, वो लिख के बात करते हैं। आजकल तो पता नहीं व्हाट्सएप से भी बातें हो जाती है, तो बोल नहीं रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं, मतलब बातें हो रही हैं। तो असली मौन क्या है? अगर असली में आपको अपनी जीवा को वश में करना, तो कृष्ण के बारे में बोलिए, 24 घंटा बोलिए। आप कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का कथा बोलिए, कृष्ण का प्रचार कीजिए, 24 घंटा गीता भागवत के श्लोकों का उच्चारण की। वह असली मौन है। मतलब भौतिक संसार से कनेक्शन को हमें कम करते जाना है धीरे धीरे, और आध्यात्मिक में बढ़ाते जाना। हम सब साधक हैं, साधना कर रहे हैं, इसीलिए हमारे मन में तो बहुत सारी इच्छाएं होंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में लगते जाएंगे, क्योंकि अगर सिर्फ आप बोलोगे कि हम अपने मन की इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को दबा दें और आध्यात्मिक कुछ नहीं करोगे, तो नहीं रुक पाएगा। हाँ, वो प्रेशर जो बनेगा वो एक दिन विस्फोट हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने भी कुछ श्लोक पहले बताया था कि आप जो है वो भक्ति में लगे, परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब भक्ति में लगेंगे, कृष्ण की सेवा में लगेंगे, तो मन और इंद्रियां कहाँ लग जाएंगी? कृष्ण के चरणों में, उनकी सेवा में। तो धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाएगा? भौतिक इच्छाएं छूटती जाएंगी। जैसे आपका पेट खाली है तो भूख लगती है, गैस बनते हैं, एसिडिटी होती है, लेकिन आप जैसे जैसे खाना खाते जाते हैं पेट भरता जाता है, तो उसमें क्या होता है? वो जो एसिडिटी हो रही है वो चली जाती है, जो पेट में तकलीफ हो रही है भूख के कारण वो चली जाती है। आप कितनी देर भूखे रह सकते हैं? तो ऐसे ही भौतिक इच्छाओं को दबाना, लेकिन आध्यात्मिक
सेवा नहीं करना वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसीलिए हम कई बार देखते हैं कि लोग जाते तो हैं वैराग लेने, लेकिन फिर उल्टे आ जाते, क्योंकि मन और इंद्रियां कृष्ण की सेवा में नहीं लगी हुई है। समुद्र जो है वो पूर्ण है, फुल है, भरा हुआ है, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता अगर नदियों से पानी गर्मी में नहीं भी आता। तो भक्त की चेतना कैसे है? कृष्ण भावना में लगी हुई है और पूर्ण है, कंप्लीट, पूरा भरा हुआ है, वहां जगह ही नहीं है भौतिक चीजों के आने का। तो ये आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है क्या? कृष्ण भावना भावित होना, और अपने आप भौतिक इच्छाएं जो है हमारे संसार से चली जाएंगी। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट रहेंगे, आपका मन जो है वो शांत रहेगा, बुद्धि स्थिर रहेगी, और आप आनंद को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे। क्वालिटी लाइफ इसे ही कहते हैं। हरे कृष्ण।